So, good morning students. Welcome again to this video lecture. The last class, we had discussed the first three stanzas of the poem The Ballad of Father Gilligan. Hope you had understood. We shall recontinue with the fourth stanza. So, to remind you of what we have discussed so far, as I had told you, Peter Gilligan, the old priest, was tired night and day because an epidemic had broken out in his entire parish. So, being a priest, it was his religious duty to care for the needy. I mean, he had to night and day attend the dying people as well as those who were dead. Right? So, in this situation, in such a critical situation, we had discussed once at dusk time, he was nodding on a chair, right? Because he was always restless. So, he needed an amount of rest also. So, sitting on a chair, he was feeling sleepy, and at that moment, another dying person called for him. Okay, right. So, when he was summoned, when he was called for, helplessly, feeling helpless, he expressed some sad words, some words of irritation, some words of helplessness, right, from which we shall discuss today. Right. So, come to the third stanza of the poem. I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. Look, feeling helpless, what the priest uttered? He has no rest, nor joy, nor peace, for people die and die. priest ने बोल दिए कि मेरी ज़िंदगी में ना ही चैन है, ना ही खुशी है, ना ही शांति है, क्योंकि लोग एक के बाद एक मर रहे हैं. So this is purely words of helplessness that the priest uttered. It was natural to a human being because he was sleepless. He was, working hard night and day, right? He was obviously doing his duty in a best possible way, but in any way, because he required a moment of rest and because he was disturbed, that's why these words came out of his mouth, right? These words came out of his mouth out of helplessness. So what he uttered? कि मेरे ज़िंदगी में खुशी नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, लोग एक के बाद एक मर रहे हैं, राइट? अगर मैं और तुम भी उनके जगह पर होते तो शायद यही बोलते. तो एक इंसान होने के नाते ऐसा बोलना जायज़ था, ऐसा हम मानेंगे ज़रूर. तो ये तो बोल दिए, बट लुक इन द नेक्स्ट टू लाइन्स. And after cried he, God forgive, my body spake, not I. Look at the fourth line of the stanza, very important. My body spake, not I. My body spake, not I. दिस इज प्रीस्ट ने तो बोल दिए कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, लोग एक के बाद एक मर रहे हैं. लेकिन अगले ही पल उनको एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड कि उनसे कुछ गलती हो गया हो. ही रियलाइज्ड दैट ही हैज़ मेड सम मिस्टेक, क्योंकि वो प्रीस्ट हैं. हिज प्राइमरी ऑब्लिगेशन, his primary responsibility is to attend to the dying as well as the dead people. That was his primary religious duty being a priest. So, ऐसा बोलना कि मेरे ज़िंदगी में खुशी नहीं है, चैन नहीं है, लोग मर रहे हैं एक के बाद एक, ऐसा बोलना ठीक नहीं था. Is not that it was irreligious. Okay, तो प्रीस्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ, और जब वो अपनी गलती का एहसास किए, अगले ही पल वो भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं. देखो, आफ्टर क्राइड ही, सून आफ्टर uttering those first two lines, he
realizing his fault, asking forgiveness from God. He says, God forgive. हे भगवान मोते क्षमा करंतु. पुणी से कहउचंती, my body spake not I. My body spake. Look at this is spake, it is spoke. Spake is old English and spoke is obviously new English. So this is outdated word, and today, okay, in place of spake we are using spoke. Spoke is the past form of speak, right? So as we all know, a ballad makes use of old and outdated words to suit the nature of the poem, because a ballad is based upon a traditional story, an old story, right? A folklore, you know, F-O-L-K, folk, lore, L-O-R-E, folklore means loka katha. Normally a ballad narrates a story. What kind of story? Generally a loka katha. आउ आम लोक कथा गुड़ाक बहुत प्राचीन, बहुत पुराणा. तो प्राचीन स्टोरी को शूट करबा पई जड़े पोएट निज बालाड रे सबु बेले पुराणा वर्ड यूज करि थाए, जोटा कि हमें आजिकली यूज करि न थाउ. सो इन दैट कंटेक्स्ट स्पेक इज ओल्ड फॉर्म ऑफ स्पोक. तो एक बार प्रिस्ट ने बोल दिए कि मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं है. फिर अगले ही पल जब उनको उनकी गलती का एहसास हुआ, वो बोल रहे हैं कि हे भगवान मुझे माफ़ करना, मैंने जो भी कहा मेरे शरीर कहा, मैंने नहीं कहा. ध्यान दो, मु जहाँ भी कहली मो शरीर कहला, मु कहनी. माने एठी क्वेश्चन कम्स, मु गोटे कथा कहीदेली तुम मान को किछि खराब कथा, बाधिला भलिया कथा, पुणी मु कहबी कि पिला माने खराब भावनी, मु जहाँ भी कहली मो शरीर कहला, मु कहनी. ये केमिति हेबो? मो शरीर कहला, मु कहनी, ताहेले मु किए, मो शरीर किए? आमे दुईटा को अलगा करि पाइबा कि? ऑब्वियसली एठी मो शरीर कहला माने मु जहाँ भी कहली गोटे थकी जाइथिबा, क्लांत हो जाइथिबा शरीर रु बाहरी पड़िला, किंतु मु कहनी. ताहेले से जहाँ कहले कि मो जीवन रे शांति नाही, खुशी नाही, वेल विश्राम नाही, ए शब्दटा से कहउचंती तांको क्लांत हो जाइथिबा शरीर रु बाहरी पड़िला, किंतु तांको अंतरात्मा रु बाहरिनी. आई माने होची अंतरात्मा. वेल यू कैन से आई इज द सोल, दैट इज द डिफरेंस. आई इज द सोल, बॉडी इज योर फ्रेम. सो सोल एंड बॉडी टू टोटली डिफरेंट थिंग्स. ताहले द प्रीस्ट वांट्स टू से कि व्हाट एवर वर्स ही ऑटर्ड केम आउट ऑफ ए टायर्ड बॉडी, केम आउट ऑफ एन एग्जॉस्टेड बॉडी, not from a pure soul which is always in the service of God, in the form of service to the mankind, his sick people, his epidemic ridden people. अरे बुझी पारल कि नहीं? आई होप यू अंडरस्टूड. माने प्रीस्ट कहवा चाहते कि मुझे जहाँ भी कहली गोटे थकी जाइथिबा, क्लांत होइथिबा शरीर रु बाहरी पड़िला, किंतु मो अंतरात्मा रु नुह, जोटा कि सब बेले आपणक सेवारे, माने भगवानक सेवारे. भगवानक सेवारे अर्थ मो निज लोक मानक सेवारे जो माने महामारी रे पीड़ित अछंती, दैट इज दैट. सो मेनी ऑफन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. यू माइट बी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय माय बॉडी स्पेक नॉट आई. हियर यू हैव टू राइट द प्रीस्ट मीन्स टू से दैट his words that he uttered came out of a tired body, an exhausted body, and not from a pure soul which is always in the service of mankind, in the service of God. That's it. So this is your third stanza. Let us jump over to the fourth stanza. Well, fourth stanza, he knelt and leaning on the chair, he prayed and fell asleep. Look at, he knelt, K-N-E-L-T. This word has come from the word kneel, K-N-E-L-L, kneel, knelt. Right. So, he knelt and leaning on the chair,
he prayed and fell asleep. So in the last stanza we had discussed the priest had asked forgiveness from God. Okay, right. Next what he did, he knelt himself down on the floor. वो फ्लोर के ऊपर घुटने टीके. ओके, एंड लीनिंग ऑन द चेयर, इट मीन्स चेयर रे आउ जाई हेई कि जेहेतु से एक्सेसिवली टायर्ड हेई जाइथिले तले आंठेबा पाई भी तांकर स्ट्रेंथ नथिला. ओके, वेल ताहले से प्रथमे आंठेइले आउ तापरे चेयर रे आउ जाई हेई कि ही प्रेड एंड फेल एस्लीप. चेयर रे आउ जाई हेई कि से भगवान को प्रार्थना कले. यार अर्थ है से भगवान को क्षमा जाचना कले एवं से ही प्रक्रिया रे से सोई पड़िले. केतेबेले से सोई पड़िले ही डिड नॉट नो बिकॉज ही वाज टायर्ड. सो क्लियर, ही knelt down on the floor. Okay, and while praying God, भगवान को क्षमा जाचना करिबा प्रक्रिया रे से चेयर रे आउ जाई हे कि केतेबेले सोई पड़िले he did not know. Okay, next line, and the mat hour went from the fields. Look at this. We had discussed the word mat hour already. I hope you can well remember. In the second stanza, we had discussed the mat hour. Mat hour, I had clearly told you, dusk period, twilight period. I had explained. Okay, what is mat hour? ताहले here, the mat hour went from the fields. देखो fields. Fields माने होची खेत. ओडिया रे गोधूली समय खेत मानंकरू उभेई गला. ताहले किछि समय आगरू जो गोधूली समय चारियाडे थिला वर्तमान से गोधूली समय उभे जाइकी आउ टिके अंधकार हैला. ताले गोधूली समय कोठारु उभे गला खेत मानंक ठारु. ए खेत कोआडु आसले ताहले आई हैड टोल्ड यू कि दिस चर्च इज लोकेटेड इन ए रूरल एरिया. आउ चर्च चारियाडे निश्चय जेहेतु रूरल कंट्री साइड चर्च चारियाडे खेत माने निश्चय थिबे. ताहले ए खेत मानंकरू माने सराउंडिंग्स रु गोधूली समय उभे गला एंड स्टार्स बिगन टू पिप. लुक एट द फोर्थ लाइन, स्टार्स बिगन टू पिप. स्टार्स बिगन टू पिप. देखो लुक एट दिस ब्यूटिफुल. तारा माने वेल धीरे धीरे उंकी मारिबा को लागिले. पिप, आई होप पिप 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 मतलब हिंदी में झांकना होता है. इन इंग्लिश ओके, टू लुक एट समथिंग स्टिल्दीली, चोरी छुप के किसी चीज़ को देखना. जैसे कि हम देखते हैं किसी चीज़ को ऐसे एक आंख बंद करके दूसरी आंख में ऐसे झांकते हैं. दरवाज़ा खिड़की में कुछ होल है तो एक आंख बंद करके ऐसे देखते हैं. दिस इज दिस पिप. ताहले ठीक वहाँ है ची वेल स्टार्स बिगन टू पिप. धीरे धीरे तारा माने उंकी मारिबा को लागिले. लेट मी एक्सप्लेन. When it is the earliest part of the evening, okay, you find only a few stars appearing one after another very stealthily, very secretively. शाम के शुरुआत में ये गिने चुने एक दो तारे चोरी छुप के निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं. दैट इज़ द थिंग. देखो कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है. एक दो तारे, कुछ गिने चुने तारे चोरी छुप के आसमान से निकलने लगे. ऐसा लगता है कि ये तारे चोरी छुप के निकल रहे हैं. ओके, राइट. सो दिस इज फोर्थ स्टांजा. कम टू फिफ्थ स्टांजा. दे स्लोली इनटू मिलियंस ग्रू. लुक एट दिस लाइन. धीरे धीरे ए गोटे दुईटा तारा लक्ष लक्ष तारारे परिणत हेले. ताहेले पोएट आमको इंडिकेट करिया पई चाहुचंती कि आउ टिके अंधकार बढ़िला. वेल ताहेले twilight ru evening ru dhire you can say night is approaching, darkness is gradually growing or intensifying. धीरे धीरे अंधकारटा बढ़िबारे लागिछि. आउ अंधकारटा जेते बढ़िबो सेते अगणित तारा वेल आकाशरे देखिबा को मिलंती. वेल सो ए जो स्लोली इनटू मिलियंस ग्रू मतलब द स्टार्स स्लोली ग्रू इनटू मिलियंस ऑफ स्टार्स. राइट. एंड लिप्स सुक इन द विंड. आउ गछर पत्र माने पवन रे हलिबा को लागिले. आई मीन जेते बेले राति हेई हेई चले ए जेंटल ब्रीज स्टार्ट्स ब्लोइंग.
right? And this gentle wind or breeze shakes the leaves of trees and plants. And in the silence of the night, okay, the fluttering sound coming out of the leaves are clearly audible. ଯେମିତି କି ରାତିରେ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ବି ବେଶୀ ଲାଗିଥାଏ ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ। ତ ଏ ଗଛମାନଙ୍କର ପତ୍ର ହଲିବା ଆବାଜଟା ରାତ୍ରିର ନିସ୍ତବ୍ଧତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ, ରାଇଟ୍? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ପୋଏଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରାତି କେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ପୋଏଟ୍ ଯାହା ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଆନ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେ, ପୋଏଟ୍ ଆମକୁ କେଉଁଠି ସିଧାସଳଖ କହୁନାହାନ୍ତି, ରେଦର ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ଦ ମିନିଂ, ମାନେ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମତଲବଟା ଆମମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନଥିଙ୍ଗ ହି ସେଜ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି or openly, okay? And God covered the world, think of the last two lines, and God covered the world with shade. God covered the world with shade. Look at shade, S-H-A-D-E, shade, in other word, S-H-A-D-O-W. Then what is shadow? I will say shadow of darkness, right? tahile God covered the world with shadow. That means भगवान ढांकी देले दुनिया को छाई रे। ताइले छाई कुआडू आसिला? छाई माने होची अंधकार रो छाई। भगवान पूरा दुनिया को अंधकार रे ढांकी देले माने रात्रि हला। तो रात्रि हबाटा को कहा जायछि जेमिति कि भगवान पूरा अंधकार रे दुनिया को ढांकी देले। हाँ, दिस इज ए बिलीफ, माइट बी ए हिंदू बिलीफ, माइट बी ए क्रिश्चियन बिलीफ, जहाँ भी हो पारे। आम कहीपर कि डे एंड नाइट ओके इज क्रिएटेड बाय गॉड। तो आम कहवा कि दिन रात्रि भगवान तैयारी करि थांती। तो ये कहुई पूरा दुनिया को भगवान अंधकार छाई रे ढांकी देले, दैट इज दैट। एंड व्हिस्पर्ड टू मैनकाइंड, व्हिस्पर्ड, WHISPERED, फुसफुसाना, इन इंग्लिश murmured, murmured, okay, to say something in a very very soft and very very slow sound, right? तो भगवान मनुष्य माननको धीरे धीरे कहले, भगवान इंसानों को फुसफुसाए। मैनकाइंड मतलब एंटायर रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो भगवान इंसानों को क्या फुसफुसाए? आमको तो फास्ट कहुई भगवान पूरा दुनिया को अंधकार छाई ढांकी देले एवं मनुष्य जाति को कौन कहले? मनुष्य जाति को धीरे धीरे कहले। ताहले भगवान कौन कहले? एठी आमको बुझा हम जमीती कि छुआ दिने माँ आमको शोला, माने भगवान सॉरी माँ आमको किसी लोरी सुनै कि प्यार रे एफेक्शनेटली माँ आमको खंडे प्यार रे चादर ढांकी दे कि आराम रे कान पाखरे इन ए वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट मैनर लोरी सुनाऊला, मो धन मो बाबू सोई जा, ओके, एमती कहूला माँ। सेमिति भगवान को ये कंपेयर कराई गोटे लविंग एंड एफेक्शनेट मदर सांगरे। गॉड हैज हियर बीन कंपेयर्ड टू ए वेरी वेरी लविंग एंड एफेक्शनेट मदर, जस्ट लाइक ए मदर trying to sleep her baby in the same manner. Okay, God covered the whole world in the shadow of darkness. भगवान ढांकी देले आमको अंधकार रो चादर रे। आउ भगवान आमको प्यार रे कहले कि मो संतान संतति माने सोई जाओ, तमे दिन सारा काम करी करी कि थकी जाइछ, आराम रे सोई जाओ। ताहले एठी भगवान को आमे नहीं पारिबा गोटे लविंग आउ एफेक्शनेट मदर सांगरे। आउ जो व्हिस्परिंग यूज करा हेछि एठी भगवान आमको लोरी सुनाउछंती, जेमिति कि माँ आमको लोरी सुनाई थाए। माने भगवान आमको प्यार रो संदेशा, शांतिर संदेशा आउ विश्राम रो संदेशा दौछंती। दैट इज दैट। सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द फिफ्थ स्टांजा। होप यू रिमेंबर। कम टू द नेक्स्ट स्टांजा। ताहले प्रिस्ट पूरापूरी सोई गले, आराम रे शांति रे प्रिस्ट सोई गले। अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प, लुक एट अनदर थिंग, अपॉन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प, SPARROWCHIRP। देखो स्पैरो घर चटिया, जहाँ भी चटिया हो पारे, चिर्प
किचिरी मिचिरी शब्द आमको सीधा सड़क पोएट कहूना व्हेन मॉर्निंग केम व्हेन डॉन केम न कहीकि पोएट आमको कहते अपन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प माने जेते बेले चंटिया मानकर ची चाँ शब्द शुणा मिलला ताहले चंटिया मानकर ची चाँ शब्द माध्यम पोएट आमको इंडिकेट करने चाहते कि डॉन हैज अराइव्ड पहांतिया हैला इज नॉट दैट राइट। तो ताहले पोएट आमको ये सीधा सड़क किसी न कहीकि पाठक मानू पोएट मजबूर करुछंती कि आमे ही निजे मतलब काढ़ा। वेल सो अपन द टाइम ऑफ स्पैरो चिर्प व्हेन द मथ्स केम वन्स मोर चटिया मानकर ची चाँ शब्द सहित जितेबले मथ्स माने पुणी थरे आसिले। देख लास्ट क्लास आई हैड टोल्ड यू अबाउट द मथ्स। मथ आवर क्या कह जाए मु कही। वेल मथ आवर माने डस्क को कह जाए मुझे भी कही किंतु मथ्स माने नॉट ओनली डस्क पहांतियारे भी उड़ीबारे लागंती। ओके ताहले मथ आवर इज एप्लीकेबल टू बोथ डॉन एंड डस्क राइट। सूर्यास्त परे किंबा सूर्योदय आगरू राइट जो अंधार और आलुअर मिक्सड इफेक्टा सराउंडिंग्स रे व्यापी जाए आम ताकू मथ आवर कहीपर। जो समय मथ्स माने उड़ीबारे लागंती बेसिकली डॉन आउ डस्क रे वेल ताहले आमको कहुई व्हेन द मथ्स केम वन्स मोर जितेबले मथ्स माने पुणी थरे आसिले ताहले इंडिकेट करुची डॉन पीरियड। ओके कौन हैला द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर राइट। सो लिसनिंग टू द chirrups of the sparrows, listening to the chirrup of the sparrows, well, Peter Gilligan suddenly woke up and stood straight on the floor itself. He was sleeping. How he slept? Well, we had discussed leaning on the chair. He had slept. Now, when dawn came with the sound of the sparrows, with the chirrups of the sparrows, suddenly he stood straight on the floor. Now, suddenly, why suddenly? जब उनका नींद टूटा उनको याद आ गया होगा पिछले शाम की प्रोसीडिंग्स, पिछले शाम की डेवलपमेंट्स। किसी आदमी ने उनको बुलाने आया था और वो भूल गए, सो बैठे, अचानक उनको याद आ गया होगा, इसलिए वो धड़ से उठ गए। दैट्स वाई स्टूड अपराइट, वो छिड़ा ही पड़िले सीधा फ्लोर रे। इट मीन्स सडनली ही मस्ट हैव रिमेंबर्ड ओके the incidents of the last evening when he had been sent for by some dying person. Now he has totally forgotten. Rather, throughout the night he slept comfortably, forgetting his entire religious responsibility of attending that person. So that is that. I mean, the priest must have realized. And in the next stanza, well, look how the priest is reacting. In the next stanza, the priest is reacting, well, repenting his last evening action of not attending the dying person, right? So in the next stanza, the priest says, look at another word, mevro. The priest exclaims, Mebro, the man has died while I slept on the chair. So, look at the word Mebro. Mebro means actually what we say alas in English is Mebro in Irish English. You have to know Irish English. Irish English is the English spoken in Ireland to which the poet belongs. So the poet is an Irish poet, means W.B. Yeats is from Ireland. People of Ireland are called Irish, and in Irish English, Mebro means alas, हे भगवान। आमे दुख रे जिते बेले कही थाउ हे भगवान, हाय रे विधाता। नॉर्मल इंग्लिश रे alas, आउ आयरलैंड रो इंग्लिश हिसाब रे Mebro. You know there are many Englishes spoken worldwide. Irish English is one of them, and this is alas is standard English. Okay, ताहले माने आमे alas
कहीकि जहाँ अर्थ प्रकाश करी थाउ आयरिश इंग्लिश रे मेब्रो मान भी सैया ताइले प्रिस्ट वर्तमान अनुताप करिकी दुख प्रकाश करिकी कहउचंती कि ओ गॉड आई स्लेप्ट कंफर्टेबली थ्रू आउट द नाइट एंड ऑन द अदर हैंड द मैन मस्ट हैव डाइड आउ से लोकटा मरी जाइथिबो एमिति कहीकि प्रिस्ट कौन कले ही राउज्ड हिज हॉर्स आउट ऑफ इट्स स्लीप राउज्ड ROUSED राउज्ड मीन्स वोक अप नींद से जगाना प्रीस्ट अपने घोड़े को नींद से जगाए ओके प्रीस्ट का एक घोड़ा भी था घोड़ा इसलिए था कि प्रीस्ट जो होता है अपने पेरिस में हर गांव में हर घर को घूमता है लोगों की सुख दुख हाल चाल पूछता है दैट्स वाई इन ए रूरल एरिया हॉर्स इज एन एक्सट्रीम नेसेसिटी फॉर ए प्रीस्ट ओके ताहले पीटर गिलिगन घोड़ा को निदरू उठेले घोड़ा सोईथिला बिकॉज इट वाज स्टिल डाउन पीरियड and rode with little care. Look at little care. I mean carelessly. How did the priest ride the horse? The priest rode the horse carelessly. Why carelessly? Because the priest is in a hurry. He wants to know, he is anxious to know what has happened to that person. से लोक को कौन है से लोक सतरे मरीगला कि जानिबा पई प्रिस्ट हरबर रे तरबर रे बेखातिर रे घोड़ा चढ़ेबा को लागिले okay that's why little care I mean without care so guys let's stop here because I hope whatever we have discussed today is much still we have around 1 2 3 4 5 stanzas remaining well in the next class we shall analyze the remaining 5 stanzas okay but whatever I discussed today well watch this video with care with attention hope you understood right so next class I will again recommence I will finish up the remaining 5 stanzas okay so till then take care thank you good day